Hi everyone, welcome back to another video. And in this video, I'm going to be talking about calculus. Okay, so calculus is one of the most dreaded topics of the entire, I would say, science stream because people actually, reason is कि पीछे यही है because we are introduced to calculus from the very beginning of our 11th standard. हमें integration, differentiation, we have to use it in certain different, in derivations and all that. Of course, in certain numericals as well. बट हमें ये टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है एज अ टॉपिक ओनली इन 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. वो भी उनको होता है जिनके पास मैथमेटिक्स होती है ना. जिनके पास नहीं होती है उनको तो पता भी नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है. सो दैट इज व्हाट बेसिकली कैलकुलस इज. एंड इन दिस वी हैव टू टॉपिक्स कॉल्ड integration and differentiation, which is what we are going to discuss in the scope of this video. And in this video we are only going to know the meaning of integration and differentiation. Okay, in the next video we'll get to business and we'll know all the formulas and the exercises and the questions that we have to practice. That will be done in the next video. But in this video हम सिर्फ समझेंगे कि what is integration, what is differentiation, what is the fuss all about. ठीक है, so let's start with differentiation. Okay, so पहले हम लोग differentiation को in detail पढ़ लेते हैं and then we'll get back to integration. Okay, so differentiation, as the name suggests, it means to differentiate, है ना. Integration, as the name suggests, it means to integrate, which means as to club together. और डिफरेंशिएट मतलब दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम. कुछ 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 दो चीजें हैं. अब वो क्या दो चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं, बट हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट. So let's say there are two values of y. y1 is, let's say, something 3 and y2 is something, let's say, 2. ठीक है, सबसे पहली बात तो जब किसी एक y की y है ना, एक y1 है एक y2, दोनों के दोनों y है ना, उसकी दो वैल्यूज है, कभी 3 है कभी 2 है और आगे जाके और चेंज हो जाएगी. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना. इतना तो समझ में आता है हमें. सो y इज अ वेरिएबल हेयर. ठीक है, इतना बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हम लोग y को वेरिएबल का, बिकॉज इसकी वैल्यू अलग अलग है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरिएबल, है ना. ऑल राइट, if I want to know the difference between y1 and y2, okay, it's y2 minus y1. So it's 2 minus 3, which means it is minus 1. Clear? So ये होता है मेरा differentiation between the two values. We have to just say final minus initial value, है ना. अब mathematicians बहुत lazy थे. ठीक है, like I'm not quoting this is something just I want to explain this. So what they did was, instead of writing y2 minus y1, they just said कि यार इतना बड़ा ना लिख के ना, let's just say del. जो छोटा सा ट्राइंगल मैंने बनाया है इसका मतलब है डेल्टा, which means the difference between or the difference between the final and the initial value, है ना. तो ये इसको, इस पूरे को हम लिख सकते हैं del y. We can say del y is equal to minus 1. ठीक है, दोनों के दोनों y की वैल्यूज है ना, एक y2 है एक y1 है, तो del y is going to be equal to minus 1. Now there is one more thing which we need to know कि अगर हम जैसे minus 1 is a significant difference, है ना. बट अगर से let's say हमारा y1 है 3 और y2 है मेरा 3.0000001. ठीक है, तो नाउ द डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y1 इज नॉट 0. इट इज क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट 0, है ना. लिमिट्स एंड लिमिट्स पढ़ा है तुमने अभी, अगर नहीं पढ़ा, अगर तुमने अभी तक, सो यू विल नो कि समटाइम्स वी से लिमिट, we write limit x approaches to 0, where the x is almost equal to 0 but it is not 0, है ना. इसको ही हम लिमिट कहते हैं, है ना. तो सिमिलरली हियर हमारा डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 इज नॉट 0, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, इट इज 0.000001 पर इट इज नॉट 0, है ना. तो इस केस में हम लोग जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ना लिख के, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल, डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल, उसको हम लोग dy लिखते हैं. इतना समझ में आया? इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा y वी राइट dy. dy मींस स्मॉल चेंज बिटवीन द वैल्यू ऑफ y. इज इट क्लियर? तो ये समझ में आया कि मेरा dy क्या होता है. सिमिलरली dx मतलब हो जाएगा स्मॉल चेंज बिटवीन द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली dz हो जाएगा स्मॉल चेंज बिटवीन द वैल्यू ऑफ z. सिमिलरली मैं लिखूंगा अगर d whatever, ठीक है, तो इट विल बी स्मॉल चेंज बिटवीन द वैल्यू ऑफ whatever. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ कभी कभार हमारे में क्या होता है, we not only want to know the difference between some things. Oh my god, I want to rub this. Yeah, so in science sometimes we not just want the difference, we want the difference with respect to some other thing. For example, I'll give you example. Let's say I want to find out the difference between the value of x.
ठीक है, जैसे कि मैंने बोला x2 माइनस x1 कर लो, सिंपली यू विल गेट द आंसर, है ना। बट लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ और डिफरेंस बिटवीन x विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल विच इज y, है ना। तो हम लिखते हैं dy बाय dx। इसका मतलब क्या हो गया, dy बाय dx का मतलब क्या हो गया, मतलब y भी चेंज हो रहा होगा, y भी एक वेरिएबल है ना, और x भी एक वेरिएबल है, दोनों चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें हम चेंज मेजर कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं ना वो नीचे आएगा। चेंज दोनों हो रहे हैं, ठीक है, बट वी आर मेजरिंग। तो ये जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इसको हम रीड करेंगे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। नाउ अगर ये मेरा ऊपर तो डी वाई रहे, नीचे चेंज इन टाइम आ जाए, मतलब चेंज इन एनीथिंग, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो उसको हम बोलेंगे रेट, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन राइट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। तुम्हें पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता है ना, बचपन से लोगों को सिखाया जाता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर राइट। इसको तुम लिख सकते हो स्पीड इज नथिंग बट इट्स चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो इसको अगर हम लोग, अगर हमारा चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम बहुत ही स्मॉल है तो वी कैन राइट एज डी, डी डिस्टेंस को अगर मैं एस से डिनोट करूं और टाइम को टी से डिनोट करूं, सो इट्स डी एस बाई डी टी। सो वी कैन राइट दैट स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट डी एस बाई डी टी और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है तो हम स्पीड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर मैं डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कर दूंगी तो वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। इतना फिजिक्स, दिस इज लाइक बेसिक फिजिक्स, इफ यू डोंट नो दिस इट्स ओके। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हम लोग जिस रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट अगर टाइम हो जाए तो इट बिकम्स रेट, अगर टाइम के अलावा कुछ भी है, इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज जी, देन इट इज नथिंग बट यू नो रेट ऑफ मतलब चेंज इन ये विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर, क्लियर। So that is what we basically measure when we are talking about differentiation. Is it clear? All right. Now let's talk about integration. अब छोटा सा differentiation को discuss कर रहे हैं तो उतना ही छोटा सा हम लोग integration को discuss करेंगे and that will be enough. In the next video we're going to talk about the numericals and everything. ठीक है? Okay. Now if we talk about integration, इंटीग्रेशन अब क्या है, देखो इंटीग्रेशन एज अ नेम सजेस्ट इट इज नथिंग बट टू क्लब समथिंग टुगेदर, ठीक है, हम कुछ चीजों को जोड़ने वाले हैं। अब वो क्या चीजें हैं, क्या है, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू दैट नाउ। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम चीजों को ऐड ही कर रहे हैं, वी वांट टू ऐड थिंग्स ना, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन अगर है तो हम तो समेशन भी कर सकते थे, है ना। जैसे हम लोग कभी कभार समेशन करते हैं, लेट्स से आई वांट टू ऐड लेट्स से आई फ्रॉम 1 टू आई टिल 10, तो हम लोग समेशन इस सिंबल का यूज कभी तुमने देखा होगा अगर, तो तुम उसको भी तो एडिशन के लिए यूज करते हो ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत सिंपल है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि समेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे जिन चीजों को हम ऐड कर रहे हैं ना वो डिस्क्रीट चीजें हैं। लेट्स से इफ आई एम एडिंग 2 पेंसिल्स, इफ आई एम एडिंग 35 वाटरमेलन्स, ठीक है, you know, if I'm adding let's say 70 shoes, okay, that is summation. We can add things which are discrete, अलग अलग दिख रही हैं अगर हमें वो चीजें, ठीक है। but what if I want to add atoms together, if I'm saying कि ये जो मेरा फोन है इसमें there are like जितने भी atoms हैं उनको ऐड कर दो, आई एम नॉट एबल टू सी दी एटम्स टुगेदर ना, कि यार इसमें 10 एटम्स पड़े उनको ऐड कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, देयर आर लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स किसी भी सरफेस पे। तो उनको ऐड करने के लिए हमें एक अलग सिंबल चाहिए या एक अलग कैलकुलस का मेथड चाहिए, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। वी बेसिकली डू नथिंग बट इंटीग्रेट, ओके। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का सिंबल होता है ये, जैसे डिफरेंशिएशन का तुमने देखा था कि डी होता है स्मॉल डी, इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये छोटा सा एक लंबा सा, यू नो, this kind of a small zig line, no, it's not a line, or you know, you can call it whatever you want to, so ऐसा दिखता है ये, ठीक है। and we basically integrate functions here, ठीक है। अब एक चीज और है जो हमें समझनी है, which is the mean, what is the meaning of a function, है ना। तो let's say if I write y is a function of x, y is a function of x, इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि y जो है ना वो x का फंक्शन है, यानी कि x जो है वो y को अपनी उंगलियों पे नचाता है,
थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया. Okay, if I say y is equal to x square plus 2, I think I explained this topic in one of my videos इससे पहले, but I'll just explain it again because अभी इस वीडियो में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. y is equal to x square plus 2. ठीक है. अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 7 9 25 वॉट एवर, है ना. लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर. x अगर 1 है तो y विल बी 1 square plus 2 विच इज 3. अगर x 0 है तो इट विल बी x square plus 2 विच इज 0 plus 2 विच इज 2, है ना. तो x की वैल्यू इस दुनिया में कुछ भी हो सकती है, बट y की वैल्यू जो होगी वो x पे डिपेंड करेगी, है ना. दैट्स व्हाई x इज गोइंग टू बी माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज y इज गोइंग टू बी माय डिपेंडेंट वेरिएबल. ये समझ में आया? इतना समझ में आया? एज आई सेड, दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, बोथ विल कीप चेंजिंग देयर वैल्यूज. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और डिपेंडिंग ऑन दैट y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, बट दोनों की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल्स ही हैं. बट एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. एक x हियर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल whereas y on the other hand is a dependent variable. Clear? So in integration we are going to just add functions, we are going to add them up together, and in differentiation we are going to talk about the difference between the two functions and mostly the difference of one with respect to another. ओके. एंड अगर वो रिस्पेक्ट में नीचे जो है वो टाइम हो जाता है तो वी कॉल इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. ठीक है. अगर मैं जहां पे भी तुम रेट वर्ड सुन लो ना, तुम समझ लेना नीचे डिनोमिनेटर में रेट टाइम आया होगा, डिफरेंस इन टाइम आया होगा. क्लियर? All right. So this is the basic, a very very basic introduction to what is integration, what is differentiation, only for those जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इसका मतलब ही क्या होता है. ठीक है. In the next video we'll talk about some formulas and we'll also do some questions related to integration and differentiation, and that will be more than enough, trust me. उसके बाद अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो यू विल रिक्वायर इट इन 12th स्टैंडर्ड वे यू डू क्वांटम मैकेनिक्स, और वो भी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करते हैं, है ना. सो आई थिंक दिस मच फॉर the introductory part is quite enough. And if you have any doubts as to what I said in this video or in the last videos, you can comment down below and let me know if you have any queries. And if you like the video, then please press the like button, share with your friends, and that's pretty much it. Thank you so much for watching.